نقطہ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا ماضی بہت شاندار رہا ہے۔ تاریخ میں بہت سی ایسی مسلمان سلطنتیں گزری ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں تھا، جو شان و شوکت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھیں۔ ایسی ہی عظیم الشان سلطنتوں میں سے ایک تیموری سلطنت تھی جس نے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آج بھی تیموری سلطنت کا ذکر اہل ہندوستان کو خوف زدہ کر دیتا ہے۔ تیموری سلطنت کی بنیاد امیر تیمور نے وقت کی بڑی طاقتوں کو دھول چٹانے کے بعد رکھی۔ ناظرین، آج ہم تیموری سلطنت کے 5 عظیم سلطانوں کی بات کریں گے جنہوں نے سلطنت کو عظیم ترین بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایسے سلطان جنہوں نے اپنی باکمال صلاحیتوں سے سلطنت کی طاقت میں اضافہ کیا اور اس کی سرحدوں کو پھیلا دیا، اور ایک ایسی نئی سلطنت کی بنیاد رکھی جو تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گئی۔ تیموری سلطنت کے 5 بہترین سلطانوں میں سب سے پہلا نمبر بلا شبہ امیر تیمور کا آتا ہے۔ ناظرین، شجاع الدین تیمور، جو امیر تیمور اور تیمور لنگ کے نام سے بھی مشہور تھے، 1336 میں سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوئے۔ تیمور لنگ کے والد معمولی زمیندار تھے۔ آباء و اجداد کا تعلق ایک ترک منگول قبیلے بڑلاس سے تھا۔ امیر تیمور بچپن سے ہی قائدانہ صلاحیتیں رکھتا تھا۔ امیر تیمور کے استاد بھی اس کی ذہانت سے متاثر تھے۔ ناظرین، چنگیز خان اور امیر تیمور کا جد امجد تومنا خان تھا۔ بہادری اور دلیری امیر تیمور کے خون میں شامل تھی۔ جنگ کے میدان میں اترا تو تاریخیں رقم کر دیں، حکمران بنا تو عظیم تیموری سلطنت کی بنیاد رکھی، تخت نشین ہوا تو صاحب قرآن کا لقب پایا۔ امیر تیمور اپنے دور کے عظیم حکمران تھے، بے شمار صلاحیتوں کے مالک تھے، ایک ہی وقت میں دونوں ہاتھوں کا استعمال بخوبی کر لیتے تھے۔ دشمن کا مقابلہ ہوتا تو ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا ہوتا اور دونوں ہاتھوں سے کافروں کی گردنیں اڑاتے۔ امیر تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ممالک فتح کیے۔ انہوں نے ان تمام علاقوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کر رہی تھی۔ امیر تیمور نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو 37 سال تک جاری رہا۔ 1391 میں امیر تیمور نے توختہ مشق کے خلاف جنگ شروع کی اور اسے شکست سے دوچار کیا۔ 1392 میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا اور ہمدان، اصفہان اور شیراز کو فتح کیا اور آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ بغداد اور عراق سے احمد جلائر کی حکومت کو ختم کیا اور پورے ایران اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ 1399 میں امیر تیمور ایک طویل مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر امیر تیمور نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے۔ سلطان کے مصر نے سفیروں کو قتل کر دیا۔ سلطان مصر کی جانب سے کی گئی گستاخی نے امیر تیمور کو اشتعال دلا دیا اور وہ اپنی فوج کو لے کر نکلا اور حلب، حما اور حمص سمیت متعدد علاقے فتح کرتے ہوئے دمشق پہنچ گیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے بعد امیر تیمور بغداد آیا، لیکن احمد جلائر اس کے بغداد پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ بغداد فتح کرنے کے بعد امیر تیمور نے ہندوستان کا رخ کیا۔ ہندوستان میں بھی کوئی امیر تیمور کی چلتی تلوار کو نہ روک سکا۔ امیر تیمور نے ملتان، دیپالپور، میرٹھ اور ہندوستان کے دل دہلی کو فتح کر لیا۔ 1402 میں امیر تیمور اور سلطان بایزید کے درمیان انقرہ میں فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں سلطان بایزید کو شکست ہوئی۔ مصر کے مملوک سلطان کو جب یہ اطلاع ملی کہ امیر تیمور نے سلطان بایزید جیسے طاقتور حکمران کو شکست دے کر گرفتار کر لیا ہے تو انہوں نے سفیر بھیج کر امیر تیمور کی اطاعت کر لی۔ ناظرین، فتوحات کی بات کی جائے تو امیر تیمور کا شمار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ چنگیز خان اور امیر تیمور کی جنگی صلاحیتوں کا مقبل امریکی مصنف ہیرلڈ لیم اپنی کتاب چنگیز خان اور تیمور میں لکھتے ہیں کہ فتوحات کے لحاظ سے امیر تیمور شاید چنگیز خان سے بھی بازی لے گیا تھا۔ چنگیز خان جنگوں میں خود شریک نہیں ہوتا تھا، بلکہ زیادہ تر علاقے اس کے سپہ سالاروں نے فتح کیے تھے۔ دوسری طرف امیر تیمور نے ہر جنگ میں خود شرکت کی۔ امیر تیمور جب بھی کسی شہر پر حملہ کرتا تو وہاں کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ جن علاقوں کو فتح کرتا ان کو مقامی حکمرانوں کے سپرد کر دیتا
और सिर्फ अतात का वादा लेकर मुतमिन हो जाता। जिस इलाके में अमीर तैमूर ने अपनी मुस्तकिल हुकूमत कायम की, वहाँ उसने क़याम अमन और अदलो इंसाफ, खुशहाली और तरक्की के सिलसिले में काबिल कदर काम किए। अमरीकी मुसन्निफ हैरोल्ड लैम अपनी किताब में लिखता है कि जिस वक्त समरकंद पर अमीर तैमूर की हुकूमत कायम हुई तो वहाँ सिवाय कुछ कच्ची ईंटों और लकड़ी के मकानों के कुछ और मौजूद नहीं था। यही कच्ची ईंटों और लकड़ी का शहर तैमूर के हाथों में आकर एशिया का रूम बन गया। अमीर तैमूर ने समरकंद में चौड़ी सड़कें बनवाईं, जनूब के पहाड़ों पर कायम मकानात को गिराकर किला तामीर करवाया, बागों के गिर्द दीवारें बनवाईं और जगह जगह पानी के तालाब बनवाए। अमीर तैमूर की हुकूमत के बाद समरकंद को गोककंद यानी नीला शहर कहा जाता था। अमीर तैमूर का इंतकाल 18 फरवरी 1405 में अतरार में हुआ। उनकी लाश को समरकंद लाकर दफनाया गया। नाज़रीन, इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आते हैं शाहरुख तैमूरी। शाहरुख तैमूरी 21 जुलाई 1377 को समरकंद में पैदा हुए। वो अमीर तैमूर के चौथे और सबसे छोटे बेटे थे, जिसे शाहरुख मिर्ज़ा भी कहा जाता था। नाज़रीन, तैमूर ने अपनी सल्तनत को इस ज़माने की रस्म के मुताबिक औलाद में तकसीम कर दिया। आज़रबाईजान, इराक़ और मुल्हिका इलाके मीरान शाह को मिले और खरासान उसके सबसे छोटे बेटे शाहरुख को। समरकंद और मावराउन नहर खलील को मिला, जिसे उमरा ने तैमूर का जानशीन मुकर्रर किया था। लेकिन तैमूर की वफ़ात के बाद उसकी औलाद में जो खाना जंगी हुई, उसमें कामयाबी शाहरुख को हासिल हुई। शाहरुख ने 1406 में मायंदरान के अगले साल सिस्तान और 1409 में मावराउन नहर पर कब्ज़ा कर लिया। 1414 में शाहरुख ने फारिस और 1416 में करमान भी फतह कर लिया। मीरान शाह ने पहले ही शाहरुख की अतात कर ली थी। इस तरह शाहरुख ने अपने बाप की वफ़ात के 12 साल बाद तैमूरी सल्तनत की हुदूद को फिर बहाल कर दिया। शाहरुख के बादशाह बनने के बाद वस्त एशिया के एक नए दौर का आगाज़ हुआ। ये दौर लश्कर कशी का नहीं था, बल्कि अमन व खुशहाली, तमीर व तरक्की और अलूम व फ़नून के फ़रोग़ का दौर था। शाहरुख अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ तबीयत का हामिल था। वो जुल्म व जबर की बजाय रहम, मोहब्बत, अदल और नेकी को पसंद करता था। वो मुत्तकी और इबादत गुजार हुक्मरान था। शाहरुख अपनी फितरत की नेकी और शराफत के बावजूद कमज़ोर हुक्मरान ना था। उसने सल्तनत की वहदत और सालमियत की पूरी कुव्वत से हिफाजत की और बगावतों को पूरी कुव्वत से कुचल दिया। इसलिए इसे 3 मरतबा तबरेज़ और 3 मरतबा शिराज तक जाना पड़ा। शाहरुख ने इल्म अदब और फ़नून लतीफ़ा की दिल खोल कर सरपरस्ती की। उसके अहद में फ़ारसी में कई यादगार किताबें लिखी गईं। सिर्फ इसके दरबार में फ़नून लतीफ़ा यानी इमारत साजी, मुसव्वरी और मौसीकी के 400 बाकमाल लोग मौजूद रहते थे। उसको इमारतें और बागात बनाने से ख़ास दिलचस्पी थी। उसके अहद में कसरत से मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें और मुसाफिर खाने तामीर हुए और उनके अखराजात के लिए औकाफ कायम किए गए। इसके इल्म दोस्त बेटे अलगबेग ने, जो समरकंद का गवर्नर था, शहर में एक आलीशान मदरसा और खानकाह तामीर की। समरकंद की मशहूर रसदगाह भी इसी दौर में तामीर हुई, जहां फल्कियाती तजुर्बात किए जाते थे। शाहरुख का दूसरा बेटा बायसनफर मुसव्वरी और किताबों की तज़ीनो आराइश का माहिर और बेहतरीन खत्तात था। उसके कुतब खाने में 40 खत्तात किताबों की नकलें करने पर मुकर्रर थे। शाहरुख तैमूरी ने हेरात में एक बड़ा कुतब खाना भी कायम किया। शाहरुख तैमूरी ने 1477 में एक सफ़र के दौरान वफ़ात पाई। उनकी तदफीन समरकंद में की गई। नुक्ता के नाजरीन, इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आते हैं अलगबेग। अलगबेग 22 मार्च 1394 को सुल्तानिया में पैदा हुए। आप शाहरुख तैमूरी के सबसे बड़े बेटे थे। अलगबेग इल्म नजूमी में बहुत सी दिलचस्पी रखते थे। अलगबेग 16 साल की उम्र में समरकंद के गवर्नर बने। जब हुकूमत संभाली तो समरकंद में इस्लामी स्कूल्स की तामीरात करवाई। इस्लामी फ़ल्कियात और माहिर रियाजी दानों को तालीम हासिल करने और सिखाने के लिए दावत दी। अलगबेग एक माहिर रियाजी दान और माहिर फ़ल्कियात भी थे। उन्होंने 1420 में समरकंद में एक अजीमुशान रसदगाह तामीर करवाई। अलगबेग रसदगाह को दुनिया की बेहतरीन रसदगाहों में शुमार किया जाता था। नजूम के जो नक्शे अलगबेग ने तैयार किए वो निहायत दुरुस्त थे। 1650 में ये नक्शे लातीनी ज़ुबान में तर्जमा हुआ और ऑक्सफोर्ड से शाया किए गए। ईरान का मौजूदा कैलेंडर भी इसी का मुरतब करदा है
और बरूज के नाम और उनके मकाम भी उसी के दिए गए हैं। अलग बेग ने बहुत सारे अहम माहिर फल्कियात को तालीम दी। रसदगाह में नस्ब आले की मदद से साल की मुद्दत, सैयारों और चांद ग्रहण की पैमाइश की। अलग बेग के सैयारों की पैमाइश का आज की पैमाइश से गहरा ताल्लुक है, जो हमें आले के गैर मामूली होने का पता देता है। अलग बेग ने रियाजी, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, 8 इशारिया और दुरुस्त साइन ईजाद किया था। सुल्तान मिर्ज़ा अलग बेग को उसके बागी बेटे ने 27 अक्टूबर 1449 को समरकंद के मुज़ाफ़ात में कत्ल करवा दिया। इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर आते हैं अबू सईद मिर्ज़ा। अबू सईद मिर्ज़ा 1424 में हेरात में पैदा हुए। अबू सईद अमीर तैमूर के पड़पोते थे, मीरान शाह के पोते और अलग बेग के भतीजे थे। अबू सईद हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर के दादा थे। अबू सईद मिर्ज़ा अलग बेग के दरबार में एक मामूली ओहदे पर तैनात थे। अलग बेग ने अबू सईद की गैर मामूली सलाहियतों, जहानत और बहादुरी देखते हुए अपनी बेटी की शादी आपसे करवा दी। जब अलग बेग के बेटे अब्दुल लतीफ़ ने अपने वालिद के खिलाफ बगावत की और अपने वालिद की जान ले ली, तो उस वक्त अबू सईद ने तैमूरी सल्तनत के शुमाली हिस्से पर कब्जा कर लिया। अबू लतीफ़ चूँकि इक़्तिदार की हवस में अंधा हो चुका था, इसलिए उसने अबू सईद के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर दिया। अबू सईद को शिकस्त हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अबू सईद 1450 में समरकंद के कैद खाने से निकलने में कामयाब हो गए और बुखारा की तरफ चल दिए। अबू सईद को बुखारा में भी मदद ना मिली और इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान अब्दुल लतीफ़ ने अबू सईद की फांसी का हुक्म दे दिया, लेकिन उनको फांसी से एक दिन पहले सुल्तान अब्दुल लतीफ़ का इंतकाल हो गया। इस खबर को मिलते ही आपकी फांसी मुलतवी कर दी गई। बुखारा के रईसों ने आपको आज़ाद करके आपकी बैत कर ली और नए सुल्तान अब्दुल्ला मिर्ज़ा पर हमला करने में आपकी मदद की। सुल्तान अब्दुल्ला को शिकस्त देकर अबू सईद ने समरकंद में अपनी हुकूमत कायम की। इब्तदा में अबू सईद ने फ़ौजी लश्कर तश्कील दिया, लेकिन समरकंद और बुखारा में कदम जमाने में नाकाम रहा और यासी में डेरे जमा लिए। 1450 तक तुर्किस्तान का बेशतर इलाका फतह कर लिया। 1451 में उन्होंने अबुल खैर खान की ज़ेर क़यादत उज़्बेकों की मदद से समरकंद पर भी कब्ज़ा कर लिया। इस तरह तैमूरी सल्तनत का तमाम मशरकी हिस्सा उन्हीं के ज़ेर नगी आ गया। उन्होंने 1458 में फ़तह हर्रात के साथ साबित कर दिया कि वो वस्त एशिया में सबसे ताकतवर तैमूरी शहज़ादा है। 1449 में उन्होंने 3 तैमूरी शहज़ादों की अफवाज को एक जंग में शिकस्त दी और 1461 तक मशरकी ईरान और अफ़गानिस्तान का बेशतर हिस्सा हासिल कर लिया। 1469 में आज़रबाईजान के पहाड़ों में कोयोनलो तुर्कमानों के ख़िलाफ़ एक मुहिम के दौरान वो गिरफ़्तार हो गए। ओज़ोन हसन ने अबू सईद को एक तैमूरी शहज़ादे मोहम्मद मिर्ज़ा के हवाले कर दिया और उसने अबू सईद मिर्ज़ा को फांसी दे दी। अबू सईद मिर्ज़ा ने 1469 में 45 साल की उम्र में वफ़ात पाई। इस फहरिस्त में 5वां नंबर आता है ज़हीरुद्दीन बाबर का। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1483 में पैदा हुए। बाबर बाप की तरफ से अमीर तैमूर और माँ की तरफ से चंगेज़ खान की नस्ल से थे। यूँ कह सकते हैं कि बाबर की रगों में 2 बड़े फातहीन का खून था। 12 बरस के थे कि बाप का इंतकाल हो गया। तख्त पर बैठे तो चचा और मामू ने शोरिश बर्पा कर दी, जिसकी वजह से 11 बरस तक परेशान रहे। कभी तख्त पर बैठ जाते तो कभी जंगलों की तरफ भाग जाते। नशेबो फराज के बाद बाबर ने 1504 में बल्ख और काबुल फतह कर लिए और इसके बाद बाबर के अजीम दौर का आगाज़ हुआ। उसने घोड़ों का रुख हिंदुस्तान की तरफ कर लिया। दर्रा खैबर के रास्ते को हाट, बन्नू, ईसा खेल समेत मुतअद्दिद इलाके फ़तह कर लिए। इस वक्त पंजाब पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी। 1526 में पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गए। इब्राहिम लोदी की फ़ौज 1 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। लोधी के लश्कर में 1000 हाथी भी थे, जिनकी दहशत ही दुश्मन पर लर्जा तारी कर देने के लिए काफ़ी थी, जबकि बाबर के पास सिर्फ 12,000 सिपाही थे। बाबर एक बहादुर जंगजू और बेहतरीन सिपाहसालार था, इसलिए अपनी फ़ौज से 8 गुना बड़ी फ़ौज के सामने भी एतमाद के साथ खड़ा रहा। बाबर ने जंग में बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहिरा किया। बाबर ने इब्राहिम लोधी के ख़िलाफ़ सल्तनत उस्मानिया के जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल किया। तुर्क तोपों के साथ मुखालिफ फ़ौज को निशाना बनाया गया। ये हिंदुस्तान की पहली जंग थी जिसमें बारूद इस्तेमाल हुआ था। कान फाड़ देने वाली आवाज़ों और बदबूदार धुएं ने लोधी की फ़ौज को हवास बाख्ता कर दिया। तोपों की घनगरज ना हिंदुस्तान के सिपाहियों ने सुनी थी और ना ही हाथियों ने।
अजीब व गरीब सूरत हाल से इब्राहिम लोदी के फौजी घबरा गए। हाथी भी उल्टे कदम भागते हुए अपनी ही फौज को कुचलने लगे। बाबर इब्राहिम लोदी को शिकस्त देने में आखिरकार कामयाब हो गया। बाबर फातिहाना अंदाज में दिल्ली में दाखिल हुआ। दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद उसने सबसे पहले अंदरूनी बगावतों का खात्मा किया, फिर ग्वालियर, हिसार, रियासत मेवात, बंगाल और बिहार को फतह किया। उसकी हुकूमत काबुल से नगाल तक और हमालिया से ग्वालियर तक फैल गई। 12 साल की उम्र से तलवार थामने वाले बाबर के हाथ से मरते दम तक तलवार न छूटी। अपनों की बगावतों और गद्दारियों के बाद हिंदुस्तान में एक मुस्तकिल हुकूमत की बुनियाद डालने में कामयाब हुए। बाबर की मशहूर तसनीफ से पता चलता है बाबर सिर्फ तलवार के बादशाह नहीं थे बल्कि कलम के भी बादशाह थे। बाबर फारसी और तुर्की ज़ुबानों के शायर भी थे। मौसीकी से भी ख़ास लगाव रखते थे। बाबर का 26 दिसंबर 1530 को आगरा में इंतकाल हुआ। नाज़रीन, अगर आप मज़ीद हुक्मरानों की तारीख़ के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।